اور ایک عظیم خطاب سماعت کرنے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں حضرت مولانا سید وقار احمد صاحب اللہ بابا تقیہ جگدیش پور سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، میں ان سے معتبرانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے پرزور خطاب سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور مدلہ فرمائیں۔ لیکن آئیے آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے شعار میں کریں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے یہ سحر بیانی، فدا ان کی تقریر پر ہے زمانہ، گلوں کا تبسم کلی۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، یا رسول اللہ مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اور اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا، چچا جا کہ کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، یمی کیا نوکر ہوئے، ٹینشن لیے اور مر گئے۔ یہ آج لوگ ڈاکٹر بنائیں گے، میرا بیٹا ہے اس کو جو ہے دروگا بنائیں گے، اس کو نیتا بنائیں گے، یہ خواہشات آج لوگوں کے من میں اکثر ہوتے ہیں، کون بنائے گا مولوی 3000 پہ کام کون کھڑا پائے گا۔ آئے میرے ملت کے نوجوان، ڈاکٹر اقبال نے 100 سال پہلے ایک شعر کہا تھا، نہ سمجھو گے نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ کہ اے ہندی مسلمانوں، اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج مسلمان جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے 313 دن رفتہ کا زمانہ، آج اربوں ہیں کرتے ہیں غلامی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے غریب کو اب حقارت کے نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے نبی رحمت عالم نور مجسم نیر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی میں غریب، امیر، نیچ، اونچ، کالا، گورا، رکسامان، راجہ، سب کو ایک اسٹیج پر کھڑا کر کے اور مدینے سے پیغام دیا تھا کہ اگر تم سے پوچھے کون ہو تو ذات بتانے کی ضرورت نہیں، سید پٹھان شاہ انصاری بتانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک جملہ نکالنا کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں کافی۔ جب مسلمان اس چیز پر عمل کرتا تھا تو پوری دنیا میں ہندو، غیر مسلم، یہودی، عیسائی اگر گاؤں میں بھوت پڑے کرتے تھے تو ہمارے ہندو بھائی کہتے تھے ایک حاجی نمازی کو بسا لو بھوت بھاگ جائے۔ آج وہی غیر مسلم قومیں ہمیں آتنکواد کیوں کہتی ہیں؟ میرے ملت کے نوجوان، ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے اور اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ واہ 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 واہ۔ اسی سے قوم دنیا میں، ہم جب مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر تھے تو 313 تھے زمانہ اپنی نگاہوں پہ بٹھا دیا، اور جب ہم دنیا کے طریقے پہ آ گئے، جب ہم زندہ رہنے کے لیے زندہ رہنے لگے، آج سلام بھی برابری کا ہوتا ہے۔ لاکھپتی چاہتا ہے مجھے 1000 پتی سلام کرے، 1000 پتی چاہتا ہے مجھے بھیک مانگنے والا سلام کرے، بھیک مانگنے والا چاہتا ہے جو مجھ سے زیادہ بھکاری وہ سلام۔ آج یہ معاملہ ہو گیا ہے میرے ملت کے مگر، بتاؤ سچائی ہے کہ نہیں؟ شادیوں میں آج کل ماحول یہ ہے، اچھا 2 کروڑ روپیہ خرچ کر کے شادی کرتے ہیں، ان کے گھر بچے سونے کے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو نہیں پتا؟ جان لیجیے، اگر آپ نے شادی میں 2 کروڑ خرچہ کیا نا تو آپ کے یہاں جو بچے ہوں گے سونے کے پیدا ہوں گے، اور اگر ہم نے شادی 50,000 میں کیا ہے تو ہمارے گھر انڈا ہوگا۔
है नहीं माँ, तभी तो लोग 2-2 करोड़ खर्च करते हैं। गरीब की बेटी घर से भाग जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अमीर ज्यादा एसी रूम में सोएगा। आए मेरे मिल्लत के नौजवान, हजरत उमर सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने डाकखाना क्यों बनाया, बैतुल माल क्यों बनाया? अगर अल्लाह ने हमें गरीब बनाया है तो हम सब से काम करें, और अगर अल्लाह ने हमें अमीर बनाया है तो हम गरीबों का ख्याल करें। आज कौन किसको पूछने वाला है दौर में, कौन किसे देखने वाला है दौर में? मेरे मिल्लत के नौजवान, मैं कुछ दिल का दर्द बयान करना चाहता हूँ। आज का माहौल बन चुका है, और हमने देखा, हमने फिरौन का वाकया सुना था, नमरूद का वाकया सुना था, शद्दाद का वाकया सुना था कि जन्नत बमाया देख नहीं पाया, मगर हमने अपनी आंखों से साल 2 साल के अंदर देखा है 15-15 जिलों पर जिसकी तूती बोलती रही हो, 15-15 हजार करोड़ की जिसकी दौलतें रही हो, एक छोटे से बच्चे ने जान ले ली है। मेरे मिल्लत के नौजवान, वो खुदा वहदहु ला शरीक है, ना गरीब ना अमीर, ना नीचा ना ऊंचा, ना काला ना गोरा, जहाँ चाहे जैसे चाहे जिस हाल में चाहे हमें भी रखेगा, तुम्हें भी रखेगा। वो खुदा जब बचाने पे आता है तो मकड़ियों के जाले से मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत करता है। वो खुदा जब बचाने पे आता है तो नमरूद के भड़कती आग से इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए आग को गुलजार बनाता है। और वो खुदा जब मारने पे आता है तो एक लगड़े लूले अपाहिज मच्छर से नमरूद जैसे वक्त के बादशाह की जान ले लेता है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवान, आज लोग रोजियों की तलाश में उस खुदा को भूले, खुदा रोजी देने वाले खुदा को भूले। आज लोगों को अपने बाजुओं पे नाज है। कितने बाजुओं वाले चले गए जिनका नामो निशान न रहा। 5 साल के हुकूमत पर झोला टांगने की आदत छोड़ो। 500 साल ख्वाजा मौलुद्दीन अजमेरी में हुआ, 700 साल से ज्यादा गुजर गए। जो गरीब नवाज का सिक्का कल था आज फिरौनी हुकूमत में है और कयामत तक रहेगा। इसलिए जो आपके वोट पे नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के रहमत करम पे गरीब नवाज है और रहेंगे। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। और जिसे मरना नहीं आया उसे क्या मतलब? अगर तुम जिंदगी हकीकत में जीना चाहते हो तो मरना सीख जाओ, वक्त से पहले मरना सीख जाओ। सैयदी आला हज़रत कहते हैं घर भी जाना है मुसाफिर के नबी, हो 10-10 मंजिलों की इमारतें बनाने वाला, ओ 500 बीघा जमीन पर इनामा कराने वाला, और गरीब की बेटी 40 साल के घर में बैठी है उस तरफ देखने वाला न देखने वाला। तो ये मत भूल वो खुदा वहदहु ला शरीक है। अगर तेरी शादी 10 करोड़ की हुई है ना तो आने वाले दिन में तेरा बच्चा भीख मांगता दिखाई देगा। और वो घर जहाँ 5 बारातियों में और 500 में निकाह हुआ है ना, वो घर का बच्चा ऐसा देखा गया है कि अमीर ज्यादा हो गया। यही रहरा आपका गाँव है। आज के 10 साल पहले कोई बहुत गरीब आदमी था, आज वो बहुत अमीर होगा। और इसी रहरा गाँव में जो 10 साल पहले बहुत अमीर रहा होगा आज वो बहुत गरीब होगा। अजीजान मिल्लत, तो अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बनाना ये काम अल्लाह का, राई को पर्वत, पर्वत को राई बनाना ये काम अल्लाह का। अपने बाजुओं पे नाज करना छोड़ो। न ताज पर न तक़वा पर न ज़ुहद इत्तिक़ा पर है, न ज़ुहद इत्तिक़ा पर है। और हर गुलाम मुस्तफा कहता है, और आप भी बोलिए चचा अनवार भाई, आप भी बोलिए चचा जी, आप भी बोलिए कैफ भाई, आप भी बोलिए कि हमें दुनिया की दौलत पे नाज नहीं, हमें अपने बाजू बल्ले पे नाज नहीं, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कल जैसे था आज है और क़यामत तक है। इसलिए कि वो किसी दुनियादार का मुहताज नहीं, वो आमिना के लाल का, और जो दुनिया वाले का मुहताज है वो मुहताज बनकर।
اور جو آمنہ کے لال کا محتاج ہے وہ دنیا میں مختار بن کر جیے. اگر انس اگر کو کہے ایک لکڑی کے کٹورے کو کہ جا اب غلام کو دے دے تو پورا تالاب سوچا. اجمیر کے نبی نالے سوچا. یہ جو محمد رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے وہ کائنات کا امام ہے. تو میرے ملت کے نوجوان اور طریقہ کیا ہوتا ہے آمنہ کے لال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سنسکرت کے کچھ شعر آپ لوگ سننا چاہیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جو سننا چاہتے ہیں. سنسکرت میں پڑھوں گا اور اردو میں ترجمہ بھی کر دوں گا, آپ کو سمجھا دوں گا. کوٹی کوٹی پرامنت مستک شکل بجا جنم ہے دین بندھو دیاندھی ابھی نندنام سوسواگتم. اب آپ لوگ ساتھ میں پڑھیے گا. شاہ امم شاہ امم شاہ امم شاہ امم. اور اب دیکھیے آتما نرمل ادھر مدھو دیہ کندن کنچنم. آج لوگ خود کو بادام اور کاجو کا ناشتہ کریں گے اور غریب اگر صبح روٹی بھی نہ کھایا ہونا تو دیکھنے کو تیار نہیں. مگر درس نبی کیا یہی تھا. نبی کا درس یہ تھا اور نبی کے گھر والوں کا درس یہ رہا ہے کہ خود بھوکے رہ لینا, کسی بھوکے کو بھوکا نہ جانے دینا. وہ نبی اگر اشارہ کرے تو چاند سورج کے پہاڑ آگے پیچھے گھومے. مگر ان کا غذا کیا ہوتا تھا؟ جو کہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہے نا. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, پہلے یہ شعر سمجھ لو پھر سنسکرت سنو گے تو اور مزہ آئے گا. آتما نرمل ادھر مدھو دیہ کندن کنچنم. آتما نرمل ادھر مدھو دیہ کندن کنچنم. اس کا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اردو میں کیا جو ہم سلام میں پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ, زمین و آسمان کے مالک اور کھائیں جو کی سوکھی روٹی. تو آمنہ کے لال کا جواب ہے پھر کھایا تو کیا کھایا, کئی غریبوں کا پیٹ بھر کر جاؤ تو یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی, ہے نا. کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا, کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت لا. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کائنات اشارہ کرے چاند سونے کے پہاڑ پیچھے چلے مگر عالم یہ ہے جو بھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھا رہے. حضرت مولا کائنات مشکل کشا فاتح خیبر علی تین دن پیٹ پہ پتھر باندھے, اور اگر کوئی بھوکا آ جائے نا تو پیٹ کا کھانا اسے دے دے اور ایک پتھر اور باندھے. تو آج غلامی نبی بنتے ہیں, خود چوپیہ سے چلیں گے, عیسو دون میں سوئیں گے, غریب کی 40 سال کی بیٹی بیٹھی ہے پروان. عزیزان ملت ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی
मुसलमानों, ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो आप ये शेर सुनिए कि आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, चंद्रमुख रत्नार बड़े मानिक नयन पद पंकजम। आप साथ में पढ़िए, शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। और आज लोग नीतियाँ बनाते हैं, सारी नीतियाँ फेल हो जाती हैं, मगर वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीति कैसी थी कि 1400 साल पहले से चल रही है और क़यामत तक चलेगी। बोलो चलेगी कैसे? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। हुकूमतें आएंगी जाएंगी, पार्टियाँ बिगड़ेंगी बनेंगी, मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा जैसा था वैसे है वैसे रहे। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। तो नीति सर्जक धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम। उनका न्याय कैसा न्याय था? आज तो जज भी पावर देख के फैसला देगा। वो आमिना के लाल का फैसला था कि अगर यहूदी जाए मुस्लिम जाए और मुस्लिम ये अकीदा लेके जाए कि मैं मुसलमान हूँ, फैसला मेरे हक में हो। वो वाक़या याद है ना नहरवाला को? तो नबी ने फरमाया यहूदी का खेत पहले है तो पहले है किसी का। मजहब के बुनियाद पर फैसला नहीं, इंसानियत के बुनियाद पर फैसला है। हक किसका है? हक की बुनियाद पर फैसला है। वो मुस्लिम उठा गया, कहा जज्बाती हज़रत सैयदना उमर उनके बाद फैसला गया। तो यहूदी ने जुमला कहा कि नबी ने फैसला मेरे हक में किया है, अब बात है। उमर ने कहा ये मुसलमान का, नबी की बात न माने वो मुसलमान। गर्दन तलवार में आंख से निकाली, गर्दन गर्दन से जुड़ा। वो सैयदना उमर है, उनका फैसला। इस्लाम का कानून, इस्लाम का फैसला। ऐसा नहीं कि मुसलमान है तो उसको जो है फैसला गलत दे दिया जाएगा, मुसलमान के हक में दे दिया जाएगा। ये कभी नहीं, हमारा इस्लाम कभी नहीं सिखाता, और न बानी इस्लाम ने कभी सिखाया। तो शायर कहने पर मजबूर हुआ, नीति सर्जक धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम, चक्रवर्ती कर्म योगी युग पुरुष अभिनंदनम। अब सब लोग पढ़े साथ में, शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। और कितने नबी के यार हैं? 4 नबी के यार 4। तो एक शायर कहता, चांद जैसे रोशन है आसमां पे तारों में, चांद जैसे रोशन है आसमां पे तारों में, वैसे हैं मेरे आका यूं ही 4 यारों में। वो आमिना के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप संस्कृत का शायर, चित्रभुज सिद्धि फारो को बनी और हैदरम, फातिमा फिर दर्शनी हसनैन सत्ता कुटुंबकम, शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। मिल्लत के नौजवान,
दरगाह के 2-3 शहर से अगर इजाजत हो तो अगर इरशाद हो तो दरूद पाक पढ़े अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम चाहते हो हश्र में जन्नत मुसलमानों। देखिए कुछ मज़ाहिब का अर्थ ये है कि हम मर जाएंगे फिर आएंगे, बैल बनकर आए, भेड़ बनकर आए, बकरी बनकर आए, गधा बनकर आए, ये कुछ मज़ाहिब का मानना है। और इस्लाम मज़हब के मानने वालों जो मुसलमान है उनका अक़ीदा ये है कि हम एक बार पैदा हुए हैं और एक बार मौत आई और उसके बाद फिर कभी नहीं आएगा, है ना। फिर हमारा दो में से एक जगह होगा, या जन्नत या दोज़ख। तो ये सयाह अलैहिर्रहमा कहते हैं घूमने का बड़ा शौक़ था और बड़े जहन वाले थे, फकीर आदमी थे। उन्होंने कहा कि अगर उस घर की फिक्र रखते हो जहाँ हमेशा न करोड़ साल, न 10 करोड़, न 100 अरब, मतलब हमेशा कह लीजिए कि हमेशा रहना ही रहेगा, तो अब उस घर की अगर फिक्र तुम्हें है तो तुम क्या करो, अगर तुम चाहते हो हश्र में जन्नत मुसलमानों तो कुछ दुनिया में कर लो दीन की खिदमत मुसलमानों। तो दुनिया में रह कर वक्त करो, झूठ से बचो, फरेब से बचो, अय्यारी से बचो, मक्कारी से बचो, गरीब अमीर करना छोड़ो, साथ बात करना छोड़ो, सैयद शाह करना छोड़ो। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूँ तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। वाह वाह वाह। किस किस जात के हो, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, अलग रखो। करोड़पति हो ठीक है, भिखारी हो ठीक है, खान साहब हो ठीक है, सैयद साहब हो ठीक है, तुम सभी कुछ हो। पहले ये बताओ मुसलमान हो कि नहीं? तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो? ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था। और वही तुम थे कि तुमसे दिल लरज़ता था ज़माने का। वो मुसलमानों की हैबत है, लोग देख के बिना समझ जाते थे ये झूठ नहीं। अगर हिंदू भाइयों में कोई मामला फंसता था तो कहते थे हाजी साहब के यहाँ चलो फैसला सही हो जाए। अगर हिंदू कहीं तीरथ पे जाते थे तो कहते थे अपने घर किसी मुस्लिम के हवाले कर दो तो मेरे घर की बहन बेटियाँ महफूज हो गई। और आज मुसलमान को मुसलमान से डर लगता है, आज पटीदार को पटीदार से डर लगता है, आज भाई को भाई से डर लगता है। कैसा माहौल हो गया है, कैसा उसूल हो गया। आज सबसे ज़्यादा जलसे सुन्नियों में और सबसे जाहिल सुन्नी, रोज जलसे सुन्नियों में सबसे ज़्यादा जाहिल सुन्नी। आज अल्लामा काफ़ी ने कहा था कि मुसलमानों ये दुनिया है, आज काफ़ी जा रहा है, चाहे पैसे से जाए, मौत तो सबको आनी है। अब वो चाहे चोरी से आए, चाहे जहर से आए, चाहे एक्सीडेंट से आए, चाहे घर के चारपाई पर आए या फिजारा काटने से आए। 6 बार वर्षा में जिंदा बैठा हूँ, चींटी काट लेती है, आदमी मर जाता है। तो मौत का एक वक्त उससे पहले आ नहीं सकता। अगर तुमको क्यों न फिजारा ना कर, और अगर मौत है तो चींटी के काटने से भी मौत आ जाएगी। अजी जाने अल्लामा काफ़ी को जब ब्रिटिश हुकूमत आई, इसी हिंदुस्तान में मुरादाबाद की एक शख्सियत का नाम अल्लामा किफ़ायतुल्लाह है। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम इस्लाम का परचम बुलंद करना छोड़ो, दीन और अपने वतन की मोहब्बत छोड़ो और मुरादाबाद के मिनिस्टर बन जाओ। अल्लामा काफ़ी ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। तो कहा फिर तुम्हें मिनिस्ट्री भी जाएगी और तुम्हें फांसी दे दिया जाएगा, तुम्हारी जान ले ली जाएगी। कहा जान लेना तुम्हारे बस में नहीं, अगर फांसी से काफ़ी का मौत लिखी है तो फांसी से मौत आएगी। आज लोग ये समझते हैं कि मैंने उसको मार दिया, मैंने मिट्टी में मिला दिया। गलत गलत सोच हो रखता है, गलत नजरिया उसका है, वो बेवकूफ है। मौत जिस चीज से लिखी है उसी चीज से आएगी और जहां लिखी है वहीं आएगी। अब अगर तेरी गोली से मौत है तो गोली से आएगा, अगर तेरी गोली से मौत है तो गोली से आएगा।
अजीजान बस मौत का एक वक्त है, ये जानो मौत का एक वक्त है, और जहाँ मौत लिखा है वहीं आएगा, जिस जगह लिखा है वहीं आएगा। तो अल्लामा काफी ने कहा इससे मुझे मत डराओ मेरे को। कहा तो फिर वक्त मुकर्रर किया जा रहा है, तुम्हें फांसी किया जाएगा। कहा ठीक। जब वक्त मुकर्रर हुआ और उनको बुलाया गया काफी को, तो कहा आपकी अंतिम इच्छा, आखिरी ख्वाहिश। तो कहा अभी बच्चों के लिए कुछ कहेंगे, हमारे दो बच्चे हैं इनका ख्याल रखना। तो कहा नहीं, बच्चों का मालिक अल्लाह, जो रब पैदा किया है रज़्ज़ाक़ को है, रोज़ी को दे। आज तो लोग कहते हैं कि कमाल हो 10-20 लाख बैलेंस कर लो अपने औलाद के लिए। पहले के लोगों का अक़ीदा ये होता था जो रब पैदा किया है रज़्ज़ाक़ को, और आज मुसलमानों का अक़ीदा अपने बातों पर हो गया है, इसलिए चल बदल की चक्कर मुसलमान खा रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवान, अल्लामा काफ़ी ने कहा था मेरे दाहिने हाथ में कलम बाएं हाथ में कापी दो, और जब दिया गया तो उन्होंने यही अशार लिखना और गुनगुनाना शुरू किया था। और आज बकार अहमद गुनगुना रहा है, क़यामत तक के शेर गुनगुनाए जाएंगे और अल्लामा काफ़ी को याद किए जाएंगे, इसलिए कि वो कोई दुनियादार नहीं, वो गुलाम अहमद मुख्तार थे, तो उनका नाम दिया जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवान, अल्लामा काफ़ी ने यही शेर कहा था कि कोई गुलबागी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अक्ल शोकम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अक्ल शोकम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा, और सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हज़रत का ज़बानों पर चलन रह जाएगा, नाम हज़रत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।